ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. کھیلتے ہیں فیشن فاطمہ کے ساتھ. گڈ مارننگ, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ لوگ؟ بالکل ٹھیک. آج تو بڑے مزے کا ٹاپک ہے. آج ٹاپک اچھا ہے. آج ہم نے کہا تھوڑا اسٹائل آئیکونس کو سیلیبریٹ کیا جائے نا. ویسے میں آتی آپ سے ایک کویشچن کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اسٹائل آئیکن کیا ہوتے ہیں, مطلب کیوں ہوتے ہیں؟ بتاؤ بھی کیوں ہوتے ہیں, ان کو نہیں ہونا چاہیے. اچھا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ جن کو دیکھ کر کچھ سیکھ سکیں, کہ یہ نہیں وہی چیز ہم نے اسٹارٹ میں بھی توثیق نے بہت اچھی بات کی تھی, ایسا نہیں کہ آپ نے بس اس کو جو دیکھا آپ نے اس کو بس کیری کر لیا. آپ نے ایک سے پہلے ایک سیگمنٹ کیا تھا, وہ یونیک کلر کمبینیشنز پہ تھا. اب اس سے پہلے وہ چیز مائنڈ میں نہیں تھی, لیکن جب آپ نے دیکھا اس کو تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ چیز آپ کے اوپر اچھی لگ سکتی ہے اور آپ کس طرح سے اس میں چینجز کر کے خود اس کو انوویشن کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. سو آئی تھنک بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایکسپرٹس بہت ضروری ہوتے ہیں, ایک ایگزامپل آپ کے سامنے بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ, تو نے مجھے میری اہمیت بتانا. اچھا, اسٹائل آئیکونس آپ انہیں کہیں گے جن کا اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے, مطلب جو بیسیکلی دیکھیں فیشن تو ہم سب فالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اندھا دھند بھی فیشن فالو کرتے ہیں, اچھا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا, لیکن وہ اس کو بڑا ریلیجیسلی فالو کرتے ہیں کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے یہ چیز ٹرینڈ میں ہے تو یہ لازمی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اسٹائل آئیکونز وہ ہیں, ہم ان کو آئیکونز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ دے آر دا ون جو اپنا اسٹائل بناتے ہیں اور وہ اسٹائل فیمس ہو جاتا ہے. تو پاکستان از لکی, میں کہوں گی کہ پاکستان از بلیسڈ کہ ہمارے پاس بہت زیادہ اسٹائل آئیکونس ہیں. ان میں سے کچھ کو ہم آج سیلیبریٹ کر لیں گے کیونکہ اتنے ہیں کہ ہم سب کو اکٹھے نہیں سیلیبریٹ کر سکتے. اور جو پچھلے کئی دہائیوں سے چلے آ رہے ہیں تو ان کا آپ ایک اوور ویو ہمیں دیں گے. بالکل. اچھا جی, ہمارے پاس جو ہماری پہلی اسٹائل آئیکن ہے وہ ہے میڈم نور جہاں. ارے واہ, کیا بات ہے. تو میڈم نور جہاں سے میرا خیال ہے ان سے بڑا اسٹائل آئیکن جو ہے, مطلب شی واز اے ٹائملیس بیوٹی فرام 1930 سے لے کے 1990s تک. ان کا ایک دور تھا, میں کہوں گی انہوں نے راج کیا ہے لٹرلی اپنے ٹائم میں. بالکل. اور آپ ان کی اگر ٹرینڈ کا دیکھیں تو ساڑیاں, اچھا چوکر جو ہے وہ میں کہتی ہوں سارا چوکر اس کو کہتے ہیں, تو بالکل. تو چوکر کا میں کہوں گی جو ٹرینڈ ہے نا, شی واز دا لیڈی جو لے کر آئی تھی. اور میں اگر آپ میک اپ کے حوالے سے دیکھیں تو آنکھوں کا میک اپ بڑا گلیمرس میک اپ تھا, ایک ٹرینڈ میڈم نے دیا تھا کہ آنکھوں کو اس طرح سے بھی بنایا جا سکتا ہے. بالکل. اور اس وقت میں مطلب آج کل کا اگر میں کہوں تو ہم لوگ بڑا اسموکی آئیز اور بڑا وہ کرتے ہیں, لے کر آنے والی جو پراپر گلیمرس میک اپ تھا وہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ اس دور میں اگر انہوں نے 1930s اور 70s میں یہ چیز کیا. اچھا, پھر آپ نے ان کا بن کا اسٹائل ایک دیکھا ہے, ایگزیکٹلی ایک بڑا اسپیشل سا ان کا ایک بن کا اسٹائل ہے جس کو وہ لے کے اس طرح چلتی ہیں. ان کا میں یہ پوائنٹ کہوں گی کہ شی واز دا ون. اگر ہم ان کے اس پہ ایک پوائنٹ کہیں کہ جی ہمارا جو اسٹائل آئیکونس کا جو ایک ہے کہ شی ہیڈ ہر اون اسٹائل. انہوں نے کسی کو کاپی نہیں کیا, انہوں نے اپنا کریٹ کیا. بالکل. دس از دا ریزن کہ وہ اسٹائل آئیکونس میں آتی ہیں. اچھا, اور آپ دیکھیں آج تک بھی دیکھیں تو ایسا ایک اورا, ایسا اسٹائل نہیں ہے کسی. ایگزیکٹلی. اور فاطمہ اگر ہم ان کے دیکھیں کہ صرف ایک کلر کی ون کلر ساڑی جو ہوتی ہے ان کو اس کو بہت زیادہ گریسفلی انہوں نے کیری کیا, بیکاز یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ آپ سالڈس کو کیری کرنا از ویری ڈیفیکلٹ. ایبسولوٹلی. اور آج حسن اتفاق بھی ہے کہ آج ہم میڈم کو یاد کریں. آج ملکہ ترنم نور جہاں میڈم کی برسی بھی ہے, اور میرا خیال ہے ان کی موسیقی, ان کے گانے, اور جیسا فاطمہ کہہ رہی ہیں ان کا سٹائل, ان کا گلیمر جو ہے اس کی مثال ہمیں پورے سب کانٹیننٹ میں انمیچبل ہے. نہ انڈیا میں ملتی ہے, نہ پاکستان میں ملتی ہے. اور میڈم وی مسڈ یو, بٹ وی ایک لحاظ سے وی ڈونٹ مسڈ یو, بیکاز آپ نے جو کام کر دیا ہے, آپ نے جو ہمارے لیے چھوڑ دیا ہے, وہ آج اور آنے والی نسلوں کے لیے اتنا بہت ہے کہ سیکھنے والے سیکھنا چاہیں تو کیا کیا نہیں سیکھ سکتے. بالکل بالکل. اچھا جی, اب ہماری جو سیکنڈ سیلیبریٹی ہیں جن کو ہم اسٹائل آئیکن کے طور پہ سیلیبریٹ کریں گے وہ ہیں میڈم شبنم. ہاں جی, ٹھیک ہے. اچھا جی, 60s 70s اور 80s میں انہوں نے راج کیا. ٹھیک ہے. ان کا جو یونیک اسٹائل تھا وہ ساڑی تو تھی, لیکن بندی انہوں نے جو ہے نا اس دور میں انٹروڈیوس کرائی تھی. لیکن مین ایک جو چیز ہے, آپ ان کا ہیئر اسٹائل دیکھیں جو بی ہائیو ہیئر, اس کو بی ہائیو ہیئر اسٹائل کہتے ہیں. ڈھیر سارا بیکومن ہوتا ہے, اور پھر آگے اس میں جو ہے نا, اور ونگڈ آئی لائنر جس کو ہم لوگ آج سبین بڑا کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہمارا ونگڈ آئی لائنر, شی واز دا ون جنہوں نے ونگڈ آئی لائنر اس دور میں نکالا تھا, اور اب وہ دوبارہ سے فیشن میں آیا. ان کے لیے میں یہ کہوں گی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اسٹائل آئیکونس کو اگر ہم ان کا ایک رول نکالیں تو جو آج کل کے بھی ہمارے اسٹائل آئیکونس ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک دم جو ہے آپ پہ نظر جائے
तो बालों को कुछ एक्स्ट्रा मिनट दे दें। ओके ओके, वो बहुत, हम लोग सारा तैयार हो जाते हैं, हम लोग सारा तैयार हो जाते हैं। दोबारा बोले, इधर आवाज नहीं गई। अच्छा, बालों की आवाज आनी बहुत जरूरी है। मैं आपको एक चीज बताऊं सबीन, आप कुछ भी मेकअप ना करो, ठीक है, हाँ। आप अपने बाल अच्छे कर लो, यू आर गुड टू गो। अच्छा, आप मुझे बताएं कि अभी हमारा साल तकरीबन इख्तिताम को पहुंच रहा है। मैं सबीन से कल शाम को हमारी फोन पे बात हो रही थी, आप भी बताएं हमारे सोशल मीडिया पे जाके, डू यू एग्री और नॉट। मैं कह रहा था सबीन अगले साल से हमारा सेट भी चेंज हो रहा है, सबीन का हेयर स्टाइल बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, है ना। ये डरती है, कह रही है कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मैंने कहा एडवेंचर करो, मैंने 2 अलग जूते पहन लिए थे। आपकी तो क्या ही बात है, लेकिन मैं आज आपको एक चीज बताऊं कि वो आपने एडवेंचर रिस्क लिया, क्या हुआ? कुछ आपको मजा भी आया और कुछ भी नहीं है, आप अपने साथ तो कुछ भी कर सकते हो, ये बहुत अच्छी बात है। अपने साथ तो कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल, मुझे लगता है आप अपने साथ कुछ भी खेल सकते हो फैशन के लिहाज से, तो बालों में कुछ भी कर लो। लेकिन मेन चीज ये है कि अपने बालों को थोड़ा टाइम दिया करें। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि हम लोग अपने कपड़ों पे बहुत सारा फोकस हमारा होता है, जूतों पे भी फोकस कई लोगों का नहीं होता, मेरा तो जूतों पे बहुत फोकस होता है, लेकिन कपड़ा, जूता सब, लेकिन बाल एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग फोकस नहीं करते। एंड दिस इज द रीजन कि ये लोग स्टाइल आइकॉन्स है कि आप देखें हम इनको उनके हेयर स्टाइल्स पे कर रहे हैं। अब जिस तरह आपके ये जो ब्लू बाल हैं, आहा ठीक है, मतलब एक इट्स योर स्टाइल बेसिकली, ठीक है, तो आप भी थोड़ा बालों पे फोकस करें। उसके बाद जो हमारे कदम बढ़ाओ सबीन फारूक, हम तुम्हारे साथ हैं, हम दोनों तुम्हारे साथ। अच्छा जी, अब हमारे पास है हमारे चॉकलेट हीरो वहीद मुराद। हाँ जी, ठीक है जी। अच्छा जी, वहीद मुराद की तो जी क्या ही बात है, ठीक है, कोई रीजन था कि ही इज स्टिल कॉल्ड चॉकलेट हीरो। इन्होंने हाई नेक स्वेटर्स और जो है स्वेटर्स का जो एक ट्रेंड है, जो शोल्डर्स पे जो ये स्वेटर रखते थे, ठीक है, जैसा अभी देखिए इन्होंने जैकेट और कोट बिल्कुल रखा हुआ है। बिल्कुल, और एक इनका जो पफ है, हेयर पफ, मतलब वो तो क्या ही बात है ना जी। तो ये कुछ, अब देखें इनकी ये चीज़ें, ये इन चीज़ों की तरफ से पहचाने जाते हैं। तो एक इनकी तरफ से जो हमें एक टिप मिलती है, वो ये टिप है मेन, कि अपना एक फैशन हैक आप निकालें। अच्छा, ठीक है, वो आपका जाती एक फैशन हैक होगा, जिसको हम कहेंगे कि आपकी जो गलती है उसको कैसे आपने छुपाना है, उसको आपने कैसे लेके चलना है। जिस तरह आजकल टक इन स्टाइल, हाफ टक इन स्टाइल इज वेरी मच, कुछ नहीं भी किया हुआ ना, बिल्कुल सिंपल है। तो शर्ट को बाहर निकाले, एक तरफ से हाफ टक इन की, तो लोग कहेंगे वाह भाई बड़ा कोई स्टाइलिश बंदा आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो स्वेटर को शोल्डर पे रखना, ये इनका हम कह सकते हैं कि इनका फैशन हैक था, देखें, जिसको हम आज भी हम बात कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, नेक्स्ट फिर है जी हमारे पास मेरी फेवरेट माहीन खान, फैशन डिजाइनर, और आप इनको देखें, और मैं कहता हूँ माहीन भी हर 3-4 साल के बाद एक कुछ बिल्कुल नहीं आ जाती। ये 1970s में इन्होंने अपना फैशन का काम शुरू किया था, और मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान में मॉडर्न कट्स को, सिल्हूएट्स को लेकर आने का सारा क्रेडिट इनके पास है। अब ये मैं चाह रहा हूँ कि सबीन को अगर हम ये हेयर स्टाइल और ये कलर दें, हाँ, अगले साल, तुम्हें पता है सबीन, इनकी मेन जो एक शख्सियत है वो पहचानी जाती है। एक तो ये इनका जो हेयर स्टाइल है, इसको पिक्सी हेयर कट कहते हैं, ठीक है, और ये जो ग्रे हेयर स्टाइल है, हम ठीक है, सबीन इस वक्त हम दोनों को ऐसे देख रही है, लेकिन ये इसकी तरफ से जानी जाती हैं। और इनका एक मेन चीज ये है कि ये ज्यादा ब्लैक और व्हाइट कपड़े पहनती हैं, लेकिन ये आपको, ये पूरी दुनिया को कलरफुल कपड़े पहना रही हैं, और कितने काम वाले कपड़े, और खुद इनका एक अपना यूनिक सा स्टाइल है, ठीक है। तो बेसिकली इनका मैं ये कहूंगी कि आपने फैशन को फॉलो नहीं करना, आपका एक अपनी एक जात नहीं। है। और माहीन की तो हमारी पूरी जो फैशन की जो इंडस्ट्री है, जो ग्लैम इंडस्ट्री है, उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है, मेरा ख्याल है वो भी बहुत ज़्यादा है। सिर्फ अपना एज अ फैशन आइकॉन खुद ही नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत से लोगों को जो ग्रूम किया है, सिखाया है, इंस्पिरेशन बनी है हमारे इन्होंने फैशन बहुत इंडस्ट्री के लिए। सारे फैशन आइकॉन्स हमें दिए हैं, ये कहेंगे हम, कि खुद तो वो जो हैं, लेकिन उन्होंने हमें मजीद और दिए भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास नबीला, जो हमारी मेकअप की गुरु, हमारी जो है हेयर स्टाइल की माइस्ट्रो हैं। इनका मैं ये कहूँगी कि इनका यूनिक एक स्टाइल ये है कि इनकी सिग्नेचर ग्लासेस और शॉर्ट हेयर, ये हमेशा आपको सॉलिड्स में नजर आएंगी। अच्छा। और ये आपको सादे कपड़ों में नजर नहीं आएंगी। ये हमेशा सादे कपड़ों से मुराद ये नहीं कि काम वाले कपड़े, सॉलिड्स पहनती हैं, एक कलर के कपड़े पहनती हैं, और उनमें कट्स होते हैं, लेकिन इनकी ग्लासेस जो है वो इनका सिग्नेचर स्टाइल है, ठीक है। यानी कि वो उन्होंने अपना एक आइकॉनिक फीचर, बिल्कुल। अभी आपने एक और टर्म इस्तेमाल की थी, बड़ी दिलचस्प, मेरे लिए नहीं थी, हेयर माइस्ट्रो नहीं, वहीद मुराद के लिए, कि वो क्या है, चॉकलेट हीरो।
चॉकलेट नहीं चॉकलेट हीरो स्टाइल आइकॉन एक होता है, कुछ और भी आपने इस्तेमाल किया अच्छा, उस वक्त में गुफ्तगू में, लेकिन दैट वाज अ न्यू वर्ड फॉर मी, मेरे ज़हन से स्लिप कर गया, अभी आपसे याद कराऊंगी। अच्छा, इनसे जो अगर हम एक चीज़ सीखें तो वो ये मिलती है कि इनको मैंने जब भी देखा है, इनके आप लोग नोट करना कि नबीला का हमेशा जो शू स्टाइल है, बैग स्टाइल है और ग्लासेस का स्टाइल है, वो बड़ा ही एक दिलचस्प सा है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि वो मुझे लगता है वो उसका ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखती हैं, क्योंकि अगर आप देखें, मेरी बात सुने, जब तक आप ये चीज़ें जो है ना रोज़ हर उसके लिए आप नई चीज़ें नहीं लोगे, इट्स द कलेक्शन जो आप अपनी एक बनाते हो। तो आपने चीज़ों का जिस तरह आपने अपना ख्याल रखना है, खाली खाने पीने का ख्याल नहीं रखना होता, अपनी चीज़ों का भी फैशन के लिए ख्याल, आप हर ओकेजन पे नया सब कुछ नहीं लोगे, तो बेसिक बिल्कुल, तो आप तब ही उस एक आइकॉन की लिस्ट में तो हम हर कोई नहीं आ सकता, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कम्युनिटी में एक प्रोमिनेंट रहें अपने स्टाइल की वजह से, तो आप इन आदतों को अपना लें। उसके बाद है हमारे पास फवाद खान, ठीक है, ये तो हमारे मेरे ख्याल से रियल लाइफ प्रिंस में मैं इनको कहूंगी कि इनका जो है ना कि ये जो भी पहनते हैं इनको सूट कर जाता है, इनका एक ऑरा है, और बहुत सारे हमारा जो यंग लॉट है वो आजकल इनको फॉलो कर रहा होता है, इनके स्टाइल को। भाई फवाद ने जिस तरह की जैकेट पहनी है, तो फिर उसको फिर आप जाके बाजार में ढूंढेंगे, ये भी तो एक होता है ना कि आइकॉन वो होता है कि जिसको आपने कोई चीज पहने हुए देखा किया, फिर आप बाजार में जाके पूछते हैं, तस्वीर दिखाते हैं, ऐसी चीज चाहिए हमें, बिल्कुल, ये कलर चाहिए, या मेरे बाल इस तरह से बना दो, या मेरी दाढ़ी का जो ये वाली शेप दे दो, क्यों? फिर आप अपनी ऐसे इंस्टा निकाल के दिखाते, फवाद खान ने बनाया। So that is कि आपकी फॉलोअरशिप एज अ पर्सन भी, लेकिन आपका जो पर्सोना आपने क्रिएट किया है उसकी फॉलोअरशिप बिल्कुल। अच्छा, अब आप ये देखें ना, जिस तरह पहले ये क्लीन शेव में थे, तो अब एक दौर आ गया कि हर लड़का जो है इसी तरह की बियर्ड रखी हुई है, और पहले तो माओ को भी लड़कों की बियर्ड और इन पे जरा प्रॉब्लम होती थी, जरा दादियों को आज भी जरा होता है जरा मुंडा साफ होना चाहिए, ये बड़ा एक फोकस। लेकिन अब जब वो भी टीवी पे देखती हैं तो वो भी कहती हैं हाँ भाई बेटे ऐसी बियर्ड होनी चाहिए। मतलब ही इज द पर्सन जो एक स्टाइल आइकॉन है, हम उनको शलवार कमीज में देखें या किसी चीज में भी देखें तो वो चीज इनके पास। अच्छा, इनसे जो मैंने पॉइंट पे की है वो मेन पॉइंट है कि आप इनको हर ओकेजन पे देखें। इनके पास मुझे ऐसे लगता है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट आउटफिट है। एग्जैक्टली। मतलब आप इनको एज अ रॉक स्टार देख लें, कॉन्सर्ट पे देख लें, आप इनको जो है किसी शादी पे देख लें, किसी शूट पे देख लें, या नॉर्मल किसी इवेंट पे भी देख लें, तो ये मुझे लगता है कि ये इनका ही यही स्टाइल है। फिर जब इनको किसी और इवेंट पे देखते हैं तो ये जिस तरीके, बिल्कुल, तो बेसिक ये चीज़ भी होती है कि आपने जो पहना है आप उसको इतने अच्छे तरीके से कैरी करते हो कि ये लगता है कि आपका यही स्टाइल है। उसके बाद है जी हमारे पास हमारी पाकिस्तान की सुपरस्टार माहिरा खान, ठीक है, इनका तो मैं ये कहूँगी कि शी इज़ वेरी सिंपल, लेकिन शी इज़ वेरी स्टाइलिश, ठीक है। सिंपल रह के भी इन्होंने अपने आप को बिल्कुल ही वो सिंपल नहीं कर दिया। इनकी एक सादगी में भी एक स्टाइल है। बिल्कुल फातिमा, अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा इनको हमने कभी बहुत मेकअप में नहीं देखा कभी भी, बहुत एक्स्ट्रा बैक कॉमिंग करना और नहीं देखा, स्टाइल्स को बड़े-बड़े, लेकिन ये हम सबको अच्छी लगती है। एग्जैक्टली, इसलिए कि उसकी उस सिंप्लिसिटी के साथ आप रिलेट कर रहे हैं ना, एज इन कई दफा बहुत ज्यादा ग्लैमरस होना भी आपको आइकॉनिक बना देता है, लेकिन कई दफा बिल्कुल एक आम लड़की या आम खातून के लिए रिलेटेबल हो जाना भी आपको आइकॉनिक बना देता है। क्योंकि उनका इस दौर में भी इस तरह का सिंपल बनना, आजकल हर एक होता है बस मेकअप हो जाए, तो वो एक उनका एक स्टाइल बन गया। इनके लिए मैं ये कहूँगी कि इनका मैंने एक इंटरव्यू सुना था जिसपे उन्होंने कहा था कि मेरा स्टाइल ये है कि मेरा हमेशा जैसे ही मुझे पता लगता है कि कोई फंक्शन है तो मेरा टेलर जो है वो मेरी स्पीड डायल पर होता है। अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली इट्स ओनली लाइक कि आपको पास पता होना चाहिए कि अगर आपको अचानक भी कहीं जाना है तो आपको अपना स्टाइल पता है कि आपने किस ब्रांड पे जाना है, किस शॉप पे जाना है, या आपको क्या पहनना चाहिए। आपका टेलर ऐसा हो जो फौरन आपका फौरन कर दे। हाँ, अच्छा जी, आखिरी स्टाइल आइकॉन कौन है हमारे? जो है हमारे पास सोनिया हुसैन है। ऑलराइट, ठीक है। सोनिया हुसैन के बारे में ये कहूँगी कि ये हमारे उसमें फैशन शोज और उसमें बहुत प्रोमिनेंट नहीं होती, लेकिन अगर आप इनका एक स्टाइल देखें तो ये भी जो पहनती है वो उनका अच्छा लगता है। तो एग्जैक्ट जो आप फैशन को देख लेते हो उसको फॉलो नहीं करना, ये एक मेन जो है ना हमारे स्टाइल आइकॉन्स की एक बात होगी।
ग्रेट फातिमा, थैंक यू वेरी मच। फातिमा का सेगमेंट जब भी होता है अभी बहुत सी टिप्स Exactly. मिलती हैं और एक फील गुड फैक्टर। आज बालों के टिप मुझे मिल गया। आज तो मुझे इतना मोटिवेट कर दिया इन दो लोगों ने मिलके कि अब मेरा दिल करे आज ही जाऊं मैं हेयर कट करवा के आ जाऊं, लेकिन अब मैं करवा लूं। नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये वीक जरा इसी तरह चलने दो। ठीक है। जनवरी नया साल, नया सेट, बिल्कुल। और उसके साथ नई सबीन। नई सबीन हमारी ये ठीक है। नए बाल। सबीन, नए बाल सबीन के। लेकिन देखो खाली हेयर कट नहीं कराना, हम चाह रहे हैं कुछ चेंज वाला हेयर कट हो। हाँ, एडवेंचरस। हाँ। सबीन अब इसी डरना को नहीं तुम है, छोटा डरना- करा लो, ट्रिमिंग रोना भी नहीं है, डरना भी नहीं है। अब मुझे डर लग रहा है फातिमा की, स्पेशली इस बात से अपने साथ तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। फातिमा, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। हम राइजिंग पाकिस्तान में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम साहब, जो कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। और आज ज़रा हम कोविड टाइम्स में जो डिस्टेंस लर्निंग ओपन यूनिवर्सिटी के बाद दुनिया भर की और यूनिवर्सिटी ने भी इसका एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन अब इसका फ्यूचर क्या है। हमने तो सुना है कि अब बहुत सी दरसगाहें नॉर्मल कन्वेंशनल लर्निंग की तरफ जाने से गुरेज कर रही हैं। वो कह रही हैं भाई यही वाला सिस्टम ठीक है। तो यही वाला सिस्टम ठीक है या वापस नॉर्मल इन पर्सन लर्निंग की तरफ हम बढ़ते हुए 2022 में हमारी दरसगाहों को, पाकिस्तान की दरसगाहों को देख रहे हैं। ये हम डॉक्टर ज़िया से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।